Hello students, so today we will discuss in our SST class about power sharing from civics, the democratic politics book, and this is your first lesson from the textbook of class 10 NCERT. So in power sharing actually होता क्या है कि अगर पहले भी हमने पढ़ा था क्लास 9 में कि इंडिया में क्या है कि पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, अलग अलग हाथों में बांट दिया गया है. लाइक इन इंडिया वी हैव three distribution. I hope you all will remember this. The first one is legislature, the second is executive, and the third one is judiciary. So the legislature का काम क्या था? To make laws, जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं, हमारा लोकसभा राज्यसभा आता है, हमारा असेंबली आता है, पार्लियामेंट आता है. सेकेंड वन इज आर एग्जीक्यूटिव. इनका वर्क है इन लॉज को इम्प्लीमेंट कराना, ग्राउंड लेवल पे लेके आना, इन्हें फॉलो करवाना. थर्ड वन इज आर जुडिशरी का काम ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर इन लॉज को लेके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे वो रिजॉल्व करे. एंड इट कंस्टिट्यूट्स अ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑल द कोर्ट्स, एक्चुअली द एंटायर जुडिशियल सिस्टम. एग्जीक्यूटिव में हमारे आते हैं द IPS IAS ऑफिसर्स, द सिविल सर्वेंट्स, जो कि इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं. सो इन इंडिया all the power is shared between these three: legislature, that means all the politicians, it includes all the politicians, the parliament, and their main work is to frame laws, make laws. Second one is a executive. It comprises of all the civil servants like IAS officers, IPS officers, and other officers, and their main work is to implement these laws. Third is our judiciary. It includes the courts, all the courts, entire judicial system, and their main work is to, their main power is to resolve the queries, resolve the issues which has arose from this implementation procedure. So जब पावर शेयरिंग की बात आती है, so we have learned so many things while framing our constitution. We have learned so many things and from the constitutions of the world. And पावर शेयरिंग में हमें ये भी देखना है कि अगर पावर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसका क्या अच्छा होता है और क्या बुरा, अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो तो क्या बुरा हो सकता है. सो हियर in our first lesson we will be studying two case studies. The first one is of Belgium and the second one is of Sri Lanka. So in this class, in this part, we will be covering the case study of Belgium. So before proceeding, let us have a quick geographical outlook of Belgium, the city. Okay, it looks something like this. In Europe, it is located in Europe. Then its capital city is Brussels. The capital city of Belgium is Brussels. Now, if we look at the area and population, so I'll show you the condition or the present situation of Belgium, and let us compare Belgium with our Indian state of Haryana. Area in kilometers square and population in
crores. So if we look at the area of Belgium is 30,689 kilometers square and the population is 1.15 crores. And इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है हरियाणा, बहुत छोटा स्टेट है. So the population, the area of Haryana is 44,212 and the population is 2.54 crores. So this is as per the latest data from the various government agencies. अगर हम देखें तो बेल्जियम जो कि एक कंट्री है यूरोप की, इसकी पॉपुलेशन its population is much less than the population of our Indian state Haryana, and the country, its area is also very less, बहुत कम एरिया है हरियाणा का, जबकि एरिया जो है वो है 44,212. So now let's see the other aspects. Let's see the diversity in Belgium. Belgium की actual condition क्या है? So as I told you, it looks something like that. Okay, so the country looks something like that, and Brussels is located somewhere here. This is Brussels. अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो कंट्री जो है इसमें अराउंड 59% population they are the Dutch speaking. And they stay in the region known as Flemish. And the 40% population are French speaking, and they live in the area known as Wallonia. And the rest, around 1%, they are German speakers. So बेल्जियम एथनिक डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, इसमें 59% जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की, दैट मीन्स द मेजॉरिटी इज डच स्पीकिंग, वो डच बोलते हैं, एंड दे लिव इन द एरिया विच इज नोन एज फ्लेमिश. दिस एरिया 40% पॉपुलेशन विच इज माइनॉरिटी एंड दे लिव इन द एरिया नोन एज वलोनिया. द एरिया, द रीजन इज नोन एज वलोनिया. पर अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें, इफ वी सी द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, यहाँ पे हमारे फ्रेंच स्पीकर्स जो है वो है 80% एंड डच स्पीकर्स दे आर 20%. तो जो फ्रेंच स्पीकर्स पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है, दे आर मेजॉरिटी इन द ब्रुसेल्स, द कैपिटल सिटी, एंड द मेजॉरिटी इन द होल कंट्री, द Dutch speakers, the Dutch speaking population, they are a minority in the capital city. Now इसके वजह से क्या हुआ कि in around 1950s to 60s there is much tension between both the communities as they are the dominating one in the country. So बहुत ज़्यादा टेंशन हुए थे. अब ये टेंशन क्या क्या थे, we will see about it.
टेंशन्स क्या थे इनके, कि पहली चीज थी कि फ्रेंच कम्युनिटी विच वॉज इन मेजॉरिटी, they were rich and पावरफुल। फ्रेंच जो कि आई एम सॉरी, दे वर मेजॉरिटी इन द कैपिटल्स बट माइनॉरिटी इन द कंट्री। सो वी विल टेक द माइनॉरिटी वन, we will take the whole country as a whole, the country as a whole। so यहाँ पे क्या था कि फ्रेंच कम्युनिटी जो थी, जो पूरे बेल्जियम में माइनॉरिटी थी, विच वॉज ओनली 40% ऑफ द पॉपुलेशन। सो उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, दे वर रिच एंड दे वर मोर पावरफुल कंपेयरिंग टू द डच कम्युनिटी। सेकेंड वन, Dutch were majority in the country। एंड सेकेंड वन है डच, जो कि मेजॉरिटी थे पूरी कंट्री में, लेकिन कैपिटल की जहाँ बात कर रहे हैं ब्रुसेल्स में, ये कम्युनिटी माइनॉरिटी थी। द थर्ड वन इज वास्ट कल्चरल डिफरेंसेस, दोनों ही कम्युनिटीज में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। सो दे वर, लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ ऑल दिस 3 पॉइंट्स। टेंशन्स क्या थे इन दोनों कम्युनिटीज में? सबसे ज़्यादा टेंशन होना मतलब कि वहाँ पे पीस नहीं है, शांति नहीं है। सो यहाँ टेंशन क्यों थी? पहली चीज़, फ्रेंच जो कि पूरे कंट्री में माइनॉरिटी थी, ये रिच और पावरफुल थी, रिसोर्स इनके हाथ में था और पावर इनके हाथ में था। सेकेंड वन, द डच हु वर मेजॉरिटी, जो कि पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे, लेकिन वो कैपिटल सिटी में ही माइनॉरिटी में थे। और दूसरी चीज़ थी कि इन दोनों ही कम्युनिटीज़, फ्रेंच और डच, दोनों ही कम्युनिटीज के कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। सो व्हाट हैपेंड, अब जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, दे हैड टू रिजॉल्व इट सो दैट पीस कैन बी स्टैब्लिश्ड इन द कंट्री। पीस स्टैब्लिश होना बहुत ज़रूरी था कंट्री में। सो यहाँ पे कंट्रीज, इन लोगों ने बहुत सारे इनके अटेम्प्ट्स थे कई, जिसकी वजह से पीस स्टैब्लिश हो पाया बेल्जियम में। एंड बिफोर लाइक दिस टीम, जितने भी इश्यूज इनके बीच में थे, टू रिजॉल्व दिस इश्यूज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री वाज चेंज्ड 4 times। दे चेंज्ड कॉन्स्टिट्यूशन 4 times। (1970 से 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन 4 times चेंज किया गया, ताकि इन दोनों कम्युनिटीज में, डच और फ्रेंच कम्युनिटीज के बीच में पीस स्टैब्लिश किया जा सके, इनके जो भी इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। तो फाइनल रेजोल्यूशन जो आया वो इनका क्या था कि फर्स्ट इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रिस्क्राइब दैट it prescribed equal participation or equal representation of both the countries. Equal representation of both the communities in the central government.
फर्स्ट रेजोल्यूशन ये था कि अगर सेंटर पे जो भी गवर्नमेंट है वहाँ पे दोनों ही कम्युनिटीज, फ्रेंच स्पीकिंग एंड द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज, दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। मेंबर्स जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के हो उसमें दोनों ही कम्युनिटीज की तरफ से इक्वली मेंबर्स रिप्रेजेंट हो। सेकेंड वन वॉज, अगर कोई स्पेशल लॉ पास होता है, if any special law has to be passed or has to be granted, it has to get approval of both the groups. कोई भी लॉ जो है वो सिर्फ एक ग्रुप की सहमति से पास नहीं होगा, हर लॉ को पास करने के लिए दोनों ही ग्रुप के अप्रूवल की जरूरत है। थर्ड वन इज, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए एंड मोरोवर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी भूमिका नहीं थी, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन वाज, ओके, ब्रुसेल्स, द कैपिटल सिटी Brussels also had a different government and it also has equal representation. ब्रुसेल्स में क्या था कि एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म किया गया कैपिटल सिटी में भी, और वहां पे भी उस गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। लास्टली वाज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज आल्सो सेट अप। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम था? इस गवर्नमेंट का काम था टू रिजॉल्व इश्यूज कम्युनिटी गवर्नमेंट में एक सेटअप हुआ था। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था कि उसका काम था टू रिजॉल्व इश्यूज रिलेटेड टू लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज। सो बेल्जियम में 3 तरह की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, सॉरी 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक कैपिटल सिटी में ब्रुसेल्स में डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, and lastly is the community government. So let's have a recap of the resolution which was taken to establish peace and to resolve the issues between the main communities of Belgium with the French and the Dutch. तो देखते हैं कि क्या क्या रेजोल्यूशन हुआ था। एक क्विक रिकैप। द फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रिस्क्राइब किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही ग्रुप्स, दैट मीन्स द फ्रेंच एंड द डच, दोनों के ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन होंगे। मेंबर्स जितने भी होंगे दोनों कम्युनिटीज से इक्वली आएंगे वहां पे। सेकेंड वन इज, अगर कोई स्पेशल लॉ पास होता है या ग्रांट होता है तो उसका अप्रूवल भी दोनों ही ग्रुप से लेना होगा। किसी एक ग्रुप के अप्रूवल से वो लॉ पास नहीं होगा। दैट मीन्स the approval of only one group will not be considered. Third one, most of the powers of central government, many powers actually, they were given to the state government, and state government जो है वो उसके बाद इंडिपेंडेंटली वर्क करने लग गया था।
सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। Next one is, the fourth point is Brussels. Brussels is the capital city of Belgium. Brussels में एक अपना ही गवर्नमेंट, एक different kind of government establish हुआ, and it also had equal representation of both the communities, the French and the Dutch. And lastly, a community government was set up. Community government set up किया गया, and community government का क्या काम था? It was set up to resolve issues or to suggest laws related to culture, language or